Assembly has been used, there is a purpose, there is a reason, and why the term secured has also been used here. Justice Munib Akhtar had actually pointed out. In case of reserved seats for women, under paragraph B, each province shall be a single constituency for all reserved seats reserved for women which are allocated to the respective provinces. So my point was simple, and maybe that's how I'm looking at it. I'm just saying that the total number of general seats that we need to understand कि political party को कितना मिला है, the denomination is the total number of seats in the house from that province. आप जो exclude करते हैं ना, the exclusion of independent doesn't flow from D. That's all I'm saying. There is an inherent problem with what my lord, and with respect, my lord, there is an inherent problem there. And that problem is that if we apply what my lord has just observed, it will, in the case, it will, if there are X number of independents, Yes. which is equal to or more than the general seats required to fill in one reserve seat, if your approach is applied, then inevitably one or more reserve seats will remain vacant. So that thing has become quite, it's accentuated because of the fact of the independents being more. Otherwise, normally circumstance नहीं arrive करेगा, लेकिन we still have to go to the text of the Constitution. Let's नहीं, मैं तो purpose और text दोनों को देखें, मैं तो ख्याल में consistent है. Let me just explain आज के numbers पे, आज के numbers. What my lord is asking, if the proviso is not included in D, उसका इफेक्ट ये होगा कि कोई भी इंडिपेंडेंट जो हुआ है वो फिर किसी पे ज्वाइन करे या ना करे, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसको. वो सीट्स सिर्फ ओरिजिनल वोन सीट्स ऑफ द पार्टी will be in the formula. That's right, sir. And if I may take this further, let's for a moment assume that these 84 members or whatever the number who had joined the Sunni Ittihad Council have joined a political party. This then leaves us with 8 who have still retained independent status in this National Assembly. So in addition to this SIC, there are 8 who have retained independent status, including Mr. Gaur Ali Khan and several others. Now, I just don't want to unnecessarily hammer on this point, but it's important because, you see, my problem with this is that the best way to solve this would be to have two set of calculations before us. One is excluding the independents and one not excluding the independent, having the larger denomination, and see how does the voting pattern in the assembly changes. If it's drastic, then we have a problem. If it, well, I don't know what the difference is. So we'll have to see the difference. That difference then changes the scheme of things as far as representativeness is concerned, because the independents are also potent force within the assembly. They could be voting on things, they could join a political party tomorrow, they could do whatever. You cannot just think that the independents are, lesser beings in the assembly. So I think for me it would be very easy if you give me a calculation of the whole thing with excluding the independents and with the independents, what's the difference that comes about. That could drastically change the way you have the voting pattern in the assembly, and that drastically affects the representativeness, which is, to my mind, still the larger principle. I think if it is necessary, you see, there must be a chart. मैं अभी आपको जरा एक पे लेके जाऊंगा. ये सब अगर आप इसमें आर्टिकल 59 पढ़ लें जो सेनेट से मुतालिक है, सेनेट में तमाम मेंबर्स को वोट का हक दिया, including the independents. अगर आप ये दोनों मिला के पढ़ेंगे, then I think there will be easier to understand what it is. Sir, आप पहला एक जो principle है when we talk about the role of independence, and I will give you the example of, अब हम एक province को pick करेंगे, let's say we pick Punjab, province of Punjab for the सबका बना के करने के लिए मतलब आपका अप्रोच कुछ मेरे अप्रोच से शायद फ़र्क है. मेरे हिसाब से तो अंग्रेज़ी में लिखी हुई ये बात बहुत आसान है. हम पता नहीं कितने दिन गुजार गए हैं आर्टिकल 51 DE की तशरीह करना. अगर ऐसे कानून बनने लगे जो किसी को समझ ही नहीं आए और आइन भी किसी को समझ ना आए और उस पर लंबी चौड़ी तशरीह होना शुरू हो जाए, अगर हम सिर्फ इस पे ही रहे आइन पे, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही मुश्किल क्या है समझने की. मैं तो आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ. नहीं है क्या मुश्किल इसमें समझने के लिए? मेरे तो ख्याल में नहीं है, बट आप पेज 20, आप जरा पेज 16 पे चलेंगे सर, क्योंकि हम बहुत सारे मफरूजों पे जा रहे हैं. देखिए हम आपके अपने रूल पैदा कर रहे हैं ना, आप रूल पर मैं इसको करता हूँ, आप रूल को अगर नजरअंदाज कर दें, ठीक है,
नाम भी करें सर। आइन क्या कहता है उस अगर वो आइन यूं क्यों बना है और वैसे कैसे बना है, मैंने ना उसको चेंज करना है, ना शायद मेरे हिसाब से तो ये बेहतर होता तो ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, ये मेरा काम नहीं है सर। ये अगर वो जैसे आपने कहा ये शिक कई दफ़ा बदलती गई है, एक दफ़ा और बदल लेंगे। नेशनल असेंबली यकीनन सीखती है, नए बदलते जाते हैं ना, ये पैटर्न बेहतर है, वो पैटर्न बेहतर है, ये पैटर्न बेहतर। अब जब भी जो पैटर्न मेरे सामने आएगा मैं उसी को देखूंगा। मैं आपको दो real अब मैं examples दे अपनी कोई सोच हो, अपना मेरा कोई नजरिया हो, मैं उसको आइन के ऊपर मुंसलिक कर दूं कि जी यूं होना चाहिए, क्योंकि मेरी अकल और दानिश ये कहती है। ये मुझे समझ नहीं आ It's रहा है, not इतना हम इस पे complicated. वक्त काफी लगा रहे हैं। नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मैं दो चीजें एक्सप्लेन करता इतना हूं। मुश्किल काम है दो नॉट कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुल्क एक आज की नेशनल असेंबली का भी बता देता हूं और आज की इसमें इसकी रेलेवेंस क्या है कि अगर ये होता तो वो होता तो फलां होता। ये जरा देखिए, ये इस सवाल का रिस्पॉन्स है पेज 16 पे। बलूचिस्तान की आज की एग्जांपल लेंगे, तो मैं जवाब आ क्यों जाएगा। ले रहे हैं एग्जांपल? सर वो मैं इसलिए ले रहा हूं, क्या देना चाहते हैं? सर पॉइंट मैं तो पॉइंट अपना जो दे चुका हूं वो ये पैटर्न है। चेंज हो जाए तो हो जाए, हम तो आइन पे चलेंगे ना। अच्छी है। मतलब और मैं आइन में लिखा है वही करेंगे। अब पैटर्न point- बेशक चेंज हो जाए या ना चेंज हो, मुझे क्या पॉइंट आई एम मेकिंग माय लॉर्ड्स इज दैट अब इंडिपेंडेंस हमें ये तो नहीं कहता अच्छा पैटर्न चेंज होता है तो मैं आइन को चेंज कर देता हूँ, तो इसकी एक एग्जांपल मैं दे दूं। ये नहीं होने तो पाया। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं ना सर, सिंपल एग्जांपल आ नहीं, आप इस सवाल- 2018 वाला क्यों नहीं हमें दे मैं सिर्फ वो आपके लिए लेकर आ जाता हूं। लेकर आ जाता हूं। अनडिस्प्यूटेड दैट्स हिस्ट्री। 18 का पैटर्न आप बना उसके रहे हैं। ऊपर जनरल ये आपका वैसे आपकी सारी काम है। बातें उससे कवर हो जाती हैं। I assume that 2018 covers all the points that you're making before us. मैं आपको वो हमारे सामने लाके रखते हैं। मैं ले आऊंगा सर। आप जरा ये मेरी कैलकुलेशन है, इतना आप 2024 नहीं, की पर मैं वैसे 2024 की जरा में देख लेंगे। बहुत, अगर काश मेरा चीफ जस्टिस साहब जैसा दिमाग होता कि मैं पढ़ते ही समझ जाता सारी चीज, तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन मैं जरा आम आदमी हूँ, मुझे जरा मुझे आइन को सुनेंगे तो समझना शायद- पड़ता है। नहीं, मुझे और आप ये सुनेंगे सारी तो आपको किताबें समझ आ पढ़ी, हम जाएगी। यही करते रहे पिछले 76 साल से, इंटरप्रेटिंग करते नहीं, बट आप अगर सुनेंगे तो समझ इतना आ आसान जाएगा। होता तो पेज 16 पे जरा आपको चलें। देखिए जो जजमेंट कभी कभी जजमेंट मुझे भी मैं कहता हूँ जजमेंट ऐसा लिखा जाए जो एक मैट्रिक का तालिब इल्म समझ जाए, ठीक है। उसमें हो सकता है कोई टेक्निकल बात हो शायद ना समझ आए, मगर ये जजमेंट्स लिखे जाते हैं, आइन बनाए जाते हैं इन लोगों के लिए, वकीलों के लिए नहीं बनाए जाते, ना जजेस के लिए। ये लोगों के हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। अब उसमें इतनी मुश्किल है समझने के लिए। फिर मैं अब इसको जरा सिंपल करता हूँ। पेज 16 पर सिंपल आएंगे। है, आप इसको कॉम्प्लिकेट करें। नहीं सिंपल करता हूँ सर। वो सवाल जरा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका जरा जवाब आप जरा कमजोर जजों को भी साथ साथ लेके चले ना। पेज 16 से पेज 16 अगर चीफ जस्टिस और सीनियर पीनी ये तासुर दे रहे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं ये जो 2024 की जो बलूचिस्तान से नेशनल असेंबली की सीट्स आई हैं, this actually responds to the question, addresses the question not to the extent of independent but to the extent of voters representation which you've raised. Now let's look at page मगर 16. मुझे इससे पहले बता तो दें। अब मैं कहूँ सारों को जोड़ो, तकसीम करो, ये करो, वो करो, रीजन क्या आप कर रही है? Simple, sir. The reserve मैं seats समझाऊं must जिस तरह necessarily all मैट्रिक के be स्टूडेंट को समझाते, जिस तरह उन्होंने कहा, वो ये है कि अगर क्लास हम- 6 मेरे लिए नहीं ऑन अ लाइटर नोट, मतलब आसान जबान में मेरी प्रॉब्लम ये है, और शायद हम क्लियर हो जाएं, कि अगर इसकी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो एक पार्टी जिसके पास 10 वोट होने चाहिए 15 चले जाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। सो हम ये कह रहे हैं जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। हम हक को फर्क समझ रहे हैं, आप इतनी सी बात। हक की आप जो अभी समझा रहे हैं हमें हक क्या है। मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो हक की जो बेसिस है ना, वो बेसिस जो है वो उसको नहीं वर्कआउट बस कर रहे। वही आपको समझाना है। वो समझना पहले जरूरी है कि ये जब हम लफ्ज मुझे बता दें हक क्या मतलब है। हमें आइन देखना है। जी वही, और वो ये जब आपने जब हक कर दिया इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया। अगर आप अपने सबमिशंस दे दें, लीव द कैलकुलेशन फॉर बस मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूं। सबमिशंस दे दें, कैलकुलेशन इलेक्शन कमीशन ने अगर हमें कोई प्रॉब्लम है वो उन्हें करते कह तो दें, बात किसी ने रेज भी नहीं की। नहीं मैं सिर्फ आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल सीट्स is to be worked out to ensure that all 60 seats are filled in, and the only method to do it is to exclude the independents but for what is provided in the proviso. So let me those ask you, independents who have joined Find a political party, they add to the tally of political parties, rest of them have to be excluded, otherwise the seats will not be filled. so when in a situation like the present one, when there are more independents and there is confusion over the status of those independents, those votes will, those seats will all be excluded, because at the end of the day it's the election commission that said that
these people are independents, and it's the Election Commission that declared that they cannot join a political party and that SIC